Hello everyone, this is Deepak here. Guys, I'm gonna tell you something about analogy today. I have recorded one video already on analogy where I discussed 10 questions on analogy, but people was saying that we need to discuss more about analogy. So guys, we are going to discuss approx 50 cases of analogy where we can get the understanding how to fix it up, what are the relations that we have to check, and sometimes it is completely based on your experience, how you sorted it out or how you handled the analogy. Okay, so if you understand the proper relation, what exactly that relation between two words are, so we can get the better idea about it. सो फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं हम. देखिए गाइस, फर्स्ट में बोल रहा है नियोफाइट. नियो का मतलब होता है न्यू. सो एनी वन हु इज नियोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूकी, is also called as novice, is also called as greenhorn, right, is also called as apprentice. So these are also very very important word for the one who is a newcomer in particular field. I am rookie in this field. मैंने बोला यार hardly makes any difference. Every king once was a crying baby. Even if you are rookie in this field, you will slowly and gradually will start gaining the experience, and one day you will become the king of this field. You will become the ace and the virtuoso of this field. So a neophyte is the one who is a beginner or probably the new in this field, and the novice is also the synonym of this. So what you need to do is to find the synonym for pursuit. So pursuit मतलब होता है like we always like have a pursuit for happiness, pursuit for luxuries. Pursuit मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना, किसी चीज़ की इच्छा करना, किसी चीज़ को ढूंढना. We have seen the Will Smith movie as well, Pursuit of Happiness. Okay, सो परस्यूट मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, और यहाँ पर खोज करने के लिए कौन सा वर्ड है? क्वेस्ट. ओके, क्वेस्ट फॉर समथिंग, क्वेस्ट फॉर थर्स्ट, क्वेस्ट फॉर समथिंग मीन्स लाइक किसी चीज़ की खोज करना. तो पहला हमारा आंसर बनेगा क्वेस्ट. वी वर फाइंडिंग हेयर द सिनोनिम्स. रिगार्ड होता है किसी को सम्मान देना. एस्टीम मतलब भी होता है, जैसे हम बोलते हैं एस्टीम्ड गेस्ट, वेनरेबल गेस्ट, एमिनेंट गेस्ट. ये सब बहुत मतलब रिस्पेक्टेबल गेस्ट होते हैं. एम्बी का मतलब होता है बोथ. ठीक है, एम्बी मतलब बोथ. एम्बीवेलेंट फीलिंग मतलब मिक्स फीलिंग. if I have ambivalent feeling, like people are just showing their ambivalent feeling for coronavirus, like why there is an ambivalent feeling? Some people are not taking it seriously, some people are taking very seriously. There is completely hodgepodge, there is a complete like the like I would say mix up going on. So मैं बोलूँगा people are carrying ambivalent feeling. यहाँ पर रिगार्ड और एस्टीम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है सिनोनिम में. तो एम्बीवेलेंट मतलब वेयर नॉट डिसाइडेड, यू आर कैरिंग मिस फीलिंग और मिक्स्ड फीलिंग. तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा अनसर्टेनिटी. यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? अनसर्टेनिटी. यहाँ पर क्या बन गया? क्वेस्ट. बोथ में हमने सिनोनिम्स देखे. चलिए नेक्स्ट में देखते हैं गाइज. आई एम इलेटेड. इलेटेड बहुत ही प्यारा वर्ड है गाइज. व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग, सपोज यू गॉट योर रिजल्ट, यू गॉट सेलेक्टेड समवेयर, सो यू कैन सिंपली से दैट इट आई फाइंड इट completely surreal for me. Surreal मतलब when you are completely out of the world and like you're finding it quite bizarre for you, that you're completely elated. Elated मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्सटैटिक होना. इसको हम बोल सकते हैं ब्लिसफुल होना. इसको हम बोल सकते हैं यूफोरिक होना. ठीक है ना. इसको हम बोल सकते हैं एनरैप्चर्ड होना. सो गाइज बहुत वर्ड होते हैं इसके. एक्सटैटिक, ब्लिसफुल, यूफोरिक, एनरैप्चर्ड. So when you are elated about something, you are extremely happy about something. But when we are despondent, you're living a life of despondency is not going to help someone out. I've seen a lot of people going into the depression, going into the deep down of their thought process, and not like paying attention to the real purpose of the life, and they are living a life of despondency. Despondency मतलब when they are very very sad about something. Dejected बोल सकते हो गाइज इसको. ठीक है. डाउनकास्ट बोल सकते हो. आई एम फीलिंग डाउनकास्ट, आई एम फीलिंग डिजेक्टेड, यानी बहुत ज़्यादा सैड, ग्लूमी हो गया. लाइक हैंग डॉग एक्सप्रेशंस हो गए. लिविंग अ रेस्ट लाइफ बोल सकते. देर लॉट ऑफ वर्ड्स गाइज दैट यू विल द मोमेंट यू गो डीप डाउन इन टू दी like English language, you will come to know that it can never be mastered by anyone. So when people say that I'm master of English language, I really not able to digest this. How can you be the master of English language when it is almost going challenges on a daily basis?
चलिए, इलेटेड हो गया, बहुत खुश होना, एंड डेस्पोडेंट हो गया गाइज, द वन हु इज़ वेरी सैड अबाउट समथिंग. इट मीन्स नाउ यू हैव टू फाइंड द ऑपोजिट रिलेशनशिप. हेयर वी हैव द एंटोनिम. सो एनलाइटन होता है गाइज किसी के माइंड को कहते हैं, यू नीड टू एनलाइटन योर माइंड, बिकॉज इफ यू कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल दिस एंटायर वर्ल्ड. सो वॉट यू नीड टू डू इज टू एनलाइटन योर mind. Do not allow negative thoughts to creep in your mind, and it is seeping into your mind and spoiling your entire thought process. So you need to enlighten, मतलब अपने mind को जागृत करो. You need to ignite your mind, you need to arouse your mind, you need to kindle your mind. So ignited मतलब when आप you're giving some power to your mind और अपने आप को जागृत कर रहे हो. So यहाँ पर जो opposite बन जाएगा वो बन जाएगा ignorant. You are not bothered about something. चलिए, असेंबल का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, और कन्वेन करना भी होता है ना, मीटिंग कन्वेन करो. इंग्लिश में बोला जाता है अरे चलो एक मीटिंग कन्वेन कर लो. कन्वेन मतलब बुलाना, असेंबल करना. सो कैटेगराइज का जो है वो सिनोनिम, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, तो कैटेगराइज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिस्टमाइज. ठीक है, कैटेगराइज का सिस्टमाइज हो जाएगा. चलिए, इसका इग्नोरेंट हो गया, इसका सिस्टमाइज हो गया. यहाँ पर हमने ऑपोजिट देखा था, यहाँ पे हम सिनोनिम देखा है. चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए. ग्राइंड करना होता है पीसना, ग्राइंडर्स होते हैं घर में, है ना. क्रश करना भी होता है, किसी को कहते हैं ना कैन को क्रश कर देना यार, जब पी लो ख़त्म कर दो, तो व्हेन यू आर पुटिंग इन डस्टबिन सो प्लीज़ क्रश द कैन. और डिमोलिश मतलब भी होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना. उसका जो सिनोनिम है गाइज वो क्या है? पल्वराइज. मोदी पल्वराइज दी ऑपोजिशन. ठीक है, बीजेपी पल्वराइज दी ऑपोजिशन. इन दिल्ली आम आदमी पार्टी पल्वराइज्ड बीजेपी, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया. कांग्रेस इज़ ऑलमोस्ट पल्वराइज फ्रॉम दिल्ली. पल्वराइज होता है वैसे तो किसी चीज़ को पीसीज में, टुकड़ों में बांट देना. पल्वराइज आपने अगर देखा होगा तो जैसे कोई भी रोड़ियाँ बनती है, सड़क बनती हैं, सो यू सी दी द स्टोन्स आर बीइंग पल्वराइज्ड बाय बाय यूजिंग दी हैमर्स और बाय यूजिंग डिफरेंट अदर स्टफ. तो पल्वराइजेशन उसको बोलते हैं. बट इसको ऐसे भी बोला जाता है जब किसी को कोई बुरी तरह बर्बाद कर दे, तो मोदी पल्वराइज दी ऑपोजिशन, डिवाइडेड दी ऑपोजिशन. चलिए, आर्टिस्ट अगर पेंटिंग है, तो अगर मैं बोलूँ आर्टिस्ट को, बस ये देखो पेंटिंग क्या रिलेशन है. आर्टिस्ट पेंटिंग को बनाता है. ठीक है, आर्टिस्ट पेंटिंग को क्या करता है गाइस? बनाता है. तो यहाँ पर बस ये देखिए कौन क्या बनाता है. ड्राइवर कार को नहीं बनाता है. अच्छा, यहाँ पर देखिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम. हमें लगता है यार नोवेल को तो ऑथर बनाता है, बट ऑथर पहले होना चाहिए था, नोवेल बाद में. ऐसे बोल सकते हो, ऑथर जो है वो नॉवल को बनाता है. ये एनोलॉजी फिर भी सूट करती, बट नोवेल ऑथर को नहीं बनाती, ऑथर नॉवल को बनाता है. तो ये ऑपोजिट लिखा है, ये भी गलत हो गया. सर्जन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, बनाता नहीं है. ठीक है, सर्जन ऑपरेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कंपोज़र सिम्फनी को बनाता है. कंपोज़र यानी सिम्फनी एक धुन को बनाता है. ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गया पल्वराइज. नेक्स्ट लेते हैं गाइज. हाँ जी, कारपेंटर अगर हैमर का इस्तेमाल करता है, दिस इज़ वेरी सिंपल. प्लम्बर रेंच का इस्तेमाल करता है. अच्छा ध्यान रखना, घर में जो पाइप वो होते हैं, पाइप रिंच बोलते देखा है मैंने लोगों को, पाइप रेंच होता है. और एक चीज़ और याद रखना, ये जो होता है, जैसे कई बार लोग कहते हैं प्लम्बर को बुला दो, गाइज ये प्लम्बर नहीं होता, ये प्लमर होता है. इसको हम बोलेंगे प्लमर, प्लम्बर नहीं. ये प्लम्बर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, सो दिस इज़ प्लमर. तो प्लमर रेंच का यूज़ करता है, प्लीज़ ध्यान रखिए. चलिए, सैचुरेशन बोलते हैं ना, कहते हैं यार एक लेवल पे सैचुरेशन आ जाता है. जैसे क्लास अगर 3 घंटे की 4 घंटे की चल रही है, आप कह रहे हैं सर सैचुरेटेड हो गए, नाउ प्लीज़ डोंट टीच. जैसे 2-2.5 घंटे के बाद में जस्ट टेक द सेकंड ओपिनियन गाइड, डू यू वांट टू गो फर्दर, एंड इफ़ द पीपल से सर नो वी आर सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब आप बहुत सोख चुके हो, आप बहुत ऑलरेडी. जैसे अगर कोई सैचुरेटेड क्लोथ होता है तो उसमें पूरा पानी भर चुका होता है और उसमें और पानी नहीं भरा जा सकता. वेट का मतलब होता है गीला, लेकिन वेट उतना गीला नहीं होता जितना सैचुरेटेड होता है. तो वेट का जो है वो हायर लेवल वर्जन है सैचुरेटेड. अगर मैंने बोला मैं वेट हूँ तो मैं गीला हूँ, लेकिन अगर मैंने बोला मैं सैचुरेटेड हो गया हूँ रेन में, तो मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ. ठीक है, तो सैचुरेटेड जो है वेट का हायर लेवल ऑफ वर्जन है. एक्रिड जो होता है, एक्रिड स्मेल, इसको ऐसे लिख लो, एक्रिड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर. बर्निंग टायर की जो एक्रिड स्मेल आती है, यानी बहुत ही बदबूदार जो आती है चीज़, उसको एक्रिड स्मेल बोलते हैं. अच्छा, डिस्टेंस और फार अवे तो सेम ही लग रहा है. अब देखो इसमें क्या है ना, डैम्प और ड्रेंच. यहाँ पर भी एक गड़बड़ी है. ड्रेंच मतलब होता है पूरी तरीके से भीग जाना. जैसे ही वॉज ड्रेंच्ड इन ब्लड, वो पूरा खून में लथपथ था.
ही वॉज ड्रेंस्ड इन रेन, तो वो रेन में पूरी तरीके से भीग गया था। और डैम्प मतलब भी होता है गीला, लेकिन इसका ये एनोलॉजी तब बनता जब मैं ड्रेंच को पहले लिखता और डैम्प को बाद में लिखता। अब ये बिल्कुल सैचुरेट ये इसका सिनोनिम है, और डैम्प जो है वो वेट का सिनोनिम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ठीक होता, लेकिन डैम्प जो है ज़्यादा गीला नहीं है, ड्रेंच ज़्यादा गीला है, तो ये उल्टा हो गया है, तो यहाँ पर भी नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे एरिड लैंड ऑफ राजस्थान, तो एरिड तो होती है बिल्कुल एकदम बैरन, बिल्कुल इनफर्टाइल जो होती है, ठीक है ना, इनफर्टाइल लैंड, बैरन लैंड। तो एरिड इज़ अ वेरी 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 ड्राई लैंड। तो ड्राई उसका जो है वो लोअर वर्जन है, जैसे सैचुरेटेड का लोअर वर्जन वेट था, ऐसे ड्राई जो है वो एरिड का लोअर वर्जन है। तो ये आंसर हमारा ठीक होगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर प्लमर रेंच है। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं गाइस। हग से अगर हम अफेक्शन शो करते हैं तो हम नॉड से एसेंट शो करते हैं। नॉड मतलब होता है व्हेन यू नॉड योर हेड, मतलब जब अपना आप सर हिलाते हैं। तो कहते हैं ना, हैव योर फादर गिवन अ नॉड, क्या तुम्हारे पापा ने परमिशन दे दी है, एसेंट दे दी है। एसेंट, एसेंट मतलब क्या होता है, परमिशन देना, अग्रीमेंट। तो नॉड एसेंट होता है। हग जो है, हग से ये पता लगता है कि अफेक्शन दिखा रहे हैं। और अगर किसी ने अपनी नॉड दे दी है, सर हिला दिया है, तो इसका मतलब वो आपको अपनी एसेंट दे रहा है, अपना अग्रीमेंट दे रहा है, ठीक है ना, वो अपनी स्वीकृति दे रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड दी नॉड एंड एसेंट। चलिए इनफर्टाइल अगर मैं बोलूँ, इनफर्टाइल को भी हमने देखा ही था, एरिड हो गया, बैरन हो गया, ठीक है ना, इनफेकेंड हो गया। ये वो लैंड होती हैं जो बिल्कुल बंजर होती है। स्टेरिल हो गया, ठीक है, ये वो लैंड होती हैं जो बिल्कुल क्या होती हैं, बंजर होती हैं। तो अगर इनफर्टाइल लैंड डेजर्ट है, इसका मतलब क्या है, ये आपस में सिनोनिम है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है। अब देखो कई बार लोग है ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रूट हमेशा डिलीशियस नहीं होगा, फ्रूट खट्टे भी होते हैं, तो ये मैं नहीं मान सकता। वर्कर आलसी भी होते हैं, तो मैं कहूँगा वर्कर हमेशा डिलीजेंट होगा, मेहनती होगा। आई डिसअग्री। वेदर हॉट नहीं होते, वेदर कोल्ड भी होते हैं, तो ये भी नहीं है। लेकिन इनफर्टाइल हमेशा डेजर्ट होगा, यानी इनफर्टाइल लैंड हमेशा क्या होगी, रेगिस्तान टाइप होगी। तो वर्डेंट जो होता है गाइस, वर्डेंट का मतलब इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिए, वर्डेंट प्लांट्स। गवर्नमेंट को बहुत वर्डेंट प्लांट्स लगाने चाहिए, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। लुकिंग एट द काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट वी हैव, लुकिंग एट द काइंड ऑफ डिग्रेडेशन दैट वी हैव सीन ऑफ द natural resources, so we must have maximum plants. Governments are now very much serious about it. They're planting more trees. They understand the value of the verdant trees. Okay, verdant मतलब होता है green, हमें बहुत ग्रीनरी चाहिए, हमें वर्डेंट प्लांट्स चाहिए। और जंगल हमेशा क्या होता है गाइस, हरा भरा ही होता है, ठीक है ना। तो वर्डेंट जंगल हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है गाइस। तो ये हमने 10 एनोलॉजी देखी। एक वीडियो हम और देखेंगे अभी एनोलॉजी की वेरी सून। और मुझे लगता है व्हेन यू लाइक गो थ्रू विद 40-50 क्वेश्चंस, यू एटलीस्ट गेट द आइडिया हाउ टू सॉल्व द एनोलॉजी। and later on everything is dependent how much vocabulary you carry with you, how you basically apply the logic, how do you have the understanding of the overall the kind of analogy that we have to apply, whether it's in synonym, antonym, or it's the like baby mother and mother baby, and there are different type of analogy you need to understand by reading the questions. Okay, so this is a small video from my side. Thank you so much for watching this video. Please keep on spreading my channel to other people as well. Thank you so much. Bye bye.